दिन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का। और अब हम देखेंगे अंडर 21 बॉयज ग्रेको रोमन रेसलिंग 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी का गोल्ड मेडल मैच। गोल्ड मेडल हरियाणा को जाएगा क्योंकि दोनों रेसलर वहीं से प्रवीण और श्रीकांत। This is Pradeep Kumar of Haryana and in the red corner has represented India in youth level competitions, and his statement, that's Shrikant for you. Shrikant waiting to come in, also from Haryana. So gold and silver in the boys under 21 category. Under 21, 55 kilogram Greco-Roman has been taken by Haryana without any doubt. तो यानी कि जो मेडल टैली हमने पहले देखी थी रवि, उसमें एक गोल्ड मेडल इस बाउट के बाद ऐड हो जाएगा। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र दूसरे डिसिप्लिन से भी मेडल ला सकता है, लेकिन आज 10 गोल्ड मेडल ग्रेको रोमन से मिलने वाले हैं। हरियाणा कितने गोल्ड मेडल ले जा पाएगा ये देखना होगा। आपके राइट में है ऑरेंज सिंगलेट, लेकिन उसके पीछे देखिए एक रेड कलर की आपको पट्टी दिखाई देगी। तो रेड कॉर्नर में प्रदीप हैं और लेफ्ट में ऑफ कोर्स ब्लू सिंगलेट है और ब्लू जोन में श्रीकांत हैं। 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं। ग्रेको रोमन रेसलिंग, आप अपने विरोधी की कमर के नीचे अटैक नहीं कर सकते, लेग अटैक नहीं कर सकते लेग से, और इसको टंगड़ी फंसाना कहते हैं, वो भी नहीं कर सकते। ये हाँ बिल्कुल लेग पे अटैक नहीं कर सकते। अगर किया तो वार्निंग, अब तो सबसे पहले आपको वार्निंग मिलती है, दूसरी बार किया रेफरी चाहे तो कॉशन देके विरोधी को 1 पॉइंट भी दे। The moment Pradeep Kumar appearing a little aggressive, blue gets a verbal caution from the referee, and no, outside the zone. Red picks up 1 point for aggression because he took the opponent out of the wrestling area. That circle, the orange circle, denotes the end of the area where the grapplers can be in action. So if you force your opponent to go out of that area, not by accident but force your opponent out, then you pick up a point, which Pradeep has already done. दूसरी बार फिर वही कोशिश थी रवि, बिल्कुल। अब गोज द थंब, एक थंब यानी 1 पॉइंट मिलता है, जैसे कबड्डी में थंब का मतलब बोनस है। और इनफैक्ट अब श्रीकांत को एक मौखिक चेतावनी भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि आप पैसिव मत होइए, थोड़ा सा एक्शन दिखाइए। ये जो ऑरेंज कलर की आपको एक पट्टी दिखाई देगी, बिल्कुल पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है श्रीकांत को। ये पारतरे पोजीशन है और इस पोजीशन में पैसिव हैं श्रीकांत और उन पे ग्रिप बनाने का मौका मिल रहा है प्रदीप को। यहां से आप गट रेंच कर सकते हैं, उठा के फ्लिप कर सकते हैं। ये फ्लिप क्या ढंग से मुकम्मल हुआ, टेक डाउन हुआ है, बिल्कुल 2 पॉइंट। अगर आप अपने विरोधी के 5 में से कोई 3 जॉइंट मैट पे लगा दे तो टेक डाउन के 2 पॉइंट मिलते हैं। इस बार कोई पॉइंट नहीं मिला रवि। Well, good recovery there from Shrikant. Got out of that 4-point flip attempt by Pradeep. And now back upright, forcing Shrikant, forcing his opponent Pradeep to now again struggle. Remember, it's a contest 2-3 minute round, and Pradeep now has picked up 4 with that flip. So one attempt by Shrikant has got him back on level down. Will he be? No. Yes. Blue 4 more. 2 awarded by the match. So, okay, there is going to be a consultation because referee Vijender Singh wants to double check with both the, there you see consultation on. If the points are awarded, we'll have to wait and see. The referee had lifted fingers. Matt Chairman said 2, but yes, 4 is the confirmation. So, and Red has challenged it immediately, throwing the sponge onto the mat, and
that is a challenge. Now the jury, Ashok Kumar, Olympian, represented India in the Rio Olympic Games. The only Indian to have represented the country in Olympic Greco-Roman as an official. And so is Satyadev Malik, an Olympic referee. So there you see the move will be reviewed by the jury, whose decision will be final. The wrestlers waiting, watching the screen anxiously. There you see the move. Sunil, what's your verdict? लुक्स लाइक 4 पॉइंट्स रवि। अगर आप अपने विरोधी को डेंजर पोजीशन में मैट पे स्लैम करते हैं जब आपकी कमर 90 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल पर हो, लेकिन ये देखना है कि क्या पैसिविटी जोन के बाहर गिरे हैं। पैसिविटी जोन यानी कि ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है वहां उसके बाहर अगर ये मूव मुकम्मल हुआ है तो पॉइंट नहीं मिलते। पैसिविटी जोन तक ठीक है, दोनों तल्लीनता से देख रहे थे। इट्स गोइंग टू बी टच एंड गो। पहले वीरेंद्र मलिक ने 4 पॉइंट दिए थे, लेकिन मैच चेयरमैन ने कहा 2 पॉइंट। फिर मैच चेयरमैन, रेफरी और जज तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया 4 पॉइंट्स और उसको चैलेंज किया गया है। अगर चैलेंज आपके खिलाफ गया तो विरोधी को 1 पॉइंट मिलेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। Well, it's a gold medal match, so neither coach willing to concede a point. And remember, it is a internal rivalry. This is the chairman, the judge in standing with the members of the jury. There you see the throw being completed. Once again, the action being shown on the screen. Not able to decide that they have to take a decision. 2 points. So jury has revised the call to 2 points. So it's back. ये रवि यहां बाद में मूव लगेगा, 4 पॉइंट का मूव डिक्लेयर किया गया था, लेकिन टेक हो गया था इनफैक्ट। तो टेक डाउन के 2 पॉइंट दिए गए हैं। दोनों एल्बोज, दोनों घुटने और इन 5 में से कोई 3 ज्वाइंट अगर विरोधी के मैच पे लगा दें और आपका कोई भी लिम्ब उसकी पकड़ में ना हो तो टेक डाउन के 2 पॉइंट मिलते हैं। पहले डेंजर पोजीशन में स्लैम के 4 पॉइंट दिए गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स जो चैलेंज था वो ठीक है। श्रीकांत के नाम 2 पॉइंट की लीड है, 8 पॉइंट की लीड बन गई तो आप गोल्ड मेडल ले गए। अगर आपने अपने विरोधी के कंधे जमीन पे मैट पे लगा दिए, 1 सेकेंड तक रेफरी बोलेगा टॉप, अब तक अगर कंधे लगे रहे तो आप बाय फॉल या पिन फॉल या चित करके जीतना जिसको कहते हैं अखाड़ों में, वैसे भी जीत सकते हैं। I think people in India would prefer the chit. चित पटकी हर एक रेसलर का सपना होता है, चित से जीतना। Definitely, that is what legends live for. And once again, good. Oh, 1 for red. Aggression. He's got to recover. 5, 6, 18 seconds remaining in the first round. Remember, the contest is 2 3-minute rounds. More aggression coming from Pradeep Kumar, but Shrikant has got some very, very clever moves, and that's the reason why he is ahead. और अभी एक छोटा सा बेनिफिट ये भी होगा, अभी तो खैर नेक एंड नेक चल रही है, पूरा एक राउंड बाकी है। अगर कहीं अंत में स्कोर बराबर होता है, अभी बहुत क्लोज है, तो जिस रेसलर ने बड़े दांव वाला मूव लगाया है वो जीतता है। साक्षी मलिक इनफैक्ट अभी जो हारी है एक नई रेसलर से, स्कोर 10-10 से बराबर था, वो इसलिए हारी क्योंकि उनकी ओपोनेंट ने बड़े पॉइंट वाला मूव लगाया था। यहां श्रीकांत ने 4 पॉइंट का मूव लगाया है और प्रदीप ने मैक्सिमम 2 पॉइंट का मूव लगाया है। तो अगर स्कोर बराबर हुआ तो ज्यादा पॉइंट वाला मूव लगाने वाला रेसलर जीतेगा। वो भी बराबर हुआ तो जिसने आखिरी पॉइंट लिया बाउट का वो जीतता है। तो 4 पॉइंट का मूव अगर आप लगाते हैं, हो सकता है बाद में बेनिफिट मिले। Well, this is the start of the bout where the advantage was with Shrikant. Started picking up points as we are all set to get the second round underway now. Red 1 point behind Pradeep Kumar. Shrikant has got 6, Pradeep Kumar 5. Both wrestlers from Haryana, so would be practicing together.
know each other's moves pretty well. Steinmetz, Pradeep has got a bit of an advantage, but I think Srikanth just got away. 2 points for Pradeep Kumar. Did manage to get the player down, so picked up 2 points and goes into the lead. एक ही पॉइंट की लीड है। बहुत अच्छा डिफेंस देखने को मिला था श्रीकांत की तरफ से, क्योंकि प्रदीप कोशिश कर रहे थे डेंजर पोजीशन में स्लैम करके 4 पॉइंट लेने की, और चूंकि 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, यहाँ एक्शन काफी देखने को मिलता है। जैसे हम वेट कैटेगरी में ऊपर जाते रहते हैं, और चूंकि वैसे भी ग्रेको रोमन में कमर के नीचे अटैक कर नहीं सकते, तो एक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये काफी फुर्तीले रेसलर हैं, यंग हैं, 55 किलोग्राम से कम इनका वजन है, तो उस हिसाब से ये हाई स्कोरिंग बाउट ही कहा जा रहा है। और यहाँ तो खैर अभी पैसिविटी देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि काफी एक्टिवली दोनों रेसलर रेसल कर रहे हैं। अगर और जब रेफरी को लगे, स्पेशली 1 मिनट के बाद, कि कोई रेसलर सिर्फ टाइम पास कर रहा है, अग्रेशन नहीं दिखा रहा, तो उसको ये मौका है टेक डाउन करने का। बिल्कुल टेक डाउन हुआ है। 2 पॉइंट और मिल गए प्रदीप कुमार को। 9-6 बाहर लेकर गए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। 1 पॉइंट और मिलेगा। Clever scoring there from Pradeep Kumar, and timeout has been called because the shoelaces came off for Srikanth. So there you see the takedown, and then this is the 1 point scored by Pradeep Kumar. Takedown not given. The referee had given, but the match chairman did not confirm that. So the score has been revised for Pradeep. 2 point the lead for him. Just that 1 point for aggression when he took his opponent out of the active area. एक्टिव एरिया यानी कि ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है, बाहर लेके गए हैं। 1 पॉइंट का थम्स अप का इशारा। आप अपने विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन से अगर बाहर ले जाएं, इनफैक्ट 2 पॉइंट उसके बाद ज्यूरी और मैच चेयरमैन ने रूल किए हैं। भाई रेफरी का डिसीजन यहां फाइनल नहीं है, लेकिन बिल्कुल सामने देखिए मैच चेयरमैन बैठे हैं, और दूसरी तरफ हमारी तरफ जजेस बैठे हुए हैं, ज्यूरी भी बैठी हुई है। उनका फैसला फाइनल होता है, वो नंबर उठा के बताएंगे। तो 4 पॉइंट की लीड है प्रदीप के पास। श्रीकांत अगर 4 पॉइंट का मूव लगाएं तो स्कोर बराबर हो जाएगा, और अगर 4 पॉइंट का मूव प्रदीप ने लगाया, वो वहीं जीत जाएंगे टेक्निकल सुपीरियोरिटी से। 40 seconds remaining. Srikanth has to do something, but Pradeep Kumar wouldn't let him get a good grip on him. Holding the upper torso is what Greco-Roman wrestling is all about. All your force coming from the hands. European style wrestling, where that's why the name comes from Greco-Roman. So time ticking off. Good play there from Pradeep Kumar, and Pradeep Kumar emerges the gold medal winner. Srikanth will have to settle for silver. A 10-6 victory for Pradeep Kumar, and good technical display, Sunil, because he knew when he had got the points that he can hold off for the win. और पॉइंट्स डिफरेंस से जीते हैं। जैसा हमने बताया, जीतने के 5 तरीके हैं। सबसे कॉमन होता है पॉइंट्स डिफरेंस, कि 6 मिनट के बाउट के बाद जिसके पॉइंट ज्यादा हैं वो जीतेगा। और तारीफ प्रदीप की इसलिए भी क्योंकि इनके ऊपर 4 पॉइंट का मूव लगा था, इनको स्लैम किया गया था डेंजर पोजीशन में, लेकिन उसके बावजूद हार नहीं मानी। सिंगल पॉइंट के इन्होंने अग्रेशन वाले मूव